Hello everyone, and welcome to this second episode of the IPL discussion around the auction. We are joined by our three esteemed panelists. We have Ashok Malhotra, sir, the president of the Indian Cricketers Association and a former Indian Test player. Many thanks for joining us, Ashok, sir. Thank you. Thank you. We have Rishabh Sharma, a senior sports journalist and a consulting editor for Cricket Addictor. Thank you very much for joining us, Rishabh. Thank you, Aditya. And of course, we're joined by Mr. Priyam Singh from Cricket Addictor. Thanks for tuning in, Priyam. थैंक यू एडी. Now, just to catch you guys up, last time हमने discussion की थी on Rajasthan Royals and we had also done a discussion on Mumbai Indians in the last two episodes. आज होगी on the runners-up of last year, Delhi Capitals, a team which has seen a lot of positive growth ever since Ricky Ponting coach बने और श्रेयस अय्यर captain बने. हम Delhi Capitals की auction purse की बात करें, then they have 12.8 crore. उनके पास 6 अवेलेबल स्लॉट है जिसमें 2 आर ओवरसीज स्लॉट्स. जो प्लेयर्स दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज किए हैं, दे आर कीमो पॉल, संदीप लामचानी, एलेक्स कैरी, मोहित शर्मा, तुषार देशपांडे एंड जेसन रॉय. सो अशोक सर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको क्या लग रहा है कि इस ऑक्शन के द्वारा दिल्ली कैपिटल्स क्या, व्हाट विल दे बी लुकिंग फॉर इन द ऑक्शन दिस ईयर? See, auction mein, I would say they, as Rishabh was saying, they might be looking for an opening batsman because Prithvi Shaw, Ajinkya Rahane, they are there, but will they go with them the way Prithvi Shaw failed? Because Shikhar Dhawan ke chhod ke they need somebody who can consolidate, or they might go with Stoinis as opening batsman. It is an option also. But all in all, as far as they have good media pacer. As far as spin department is concerned, Akshar Patel, yes. Ashwin, okay, kind. I would not say a top of the range guy, but they have a kind of good spinners. But they will need somebody from the top order. If you look at it, they are also more or less Sargun Sampan team. उनके पास भी more or less they've got all bases covered. चाहे ओपनिंग बैट्समैन की बात करें, मिडिल ऑर्डर में आपके पास ऋषभ पंत हैं, श्रेयस अय्यर है, अगर अजिंक्य को आप लेते हैं तो वो भी हैं. तो मिलजुल कर एक अच्छी खासी टीम है. लेकिन जो नंबर उनको चाहिए, 6 नंबर पे चाहिए, जो अच्छा लठैत चाहिए, ऐसा खिलाड़ी जो बड़ी हिट लगा सकता. तो उसके लिए अब आप किसको पिक करते हैं, ये देखने वाली बात है. क्योंकि मेरे लिए जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादा टीम आपके पास है. एक इंडियन फास्ट बॉलर आपको चाहिए. हर्षल आपके पास हैं. क्या आप उन पे डिपेंड करेंगे? क्योंकि अभी तक देखो, सबसे बड़ी बात है, जो भी टीम आपको बनानी है आदि, उनको मुंबई इंडियंस को हराने के लिए टीम बनानी है. मुंबई इंडियंस इज दी मैनचेस्टर सिटी या लिवरपूल ऑफ द IPL. तो डेफिनेटली यू हैव टू मेक अ टीम. You can only get better. You will have to spend very carefully and get better. So yeah. I would not know how you going to go about it, but there has to be some kind of one middle order batsman who is a good striker. Maxwell, another name which comes to mind. I know he's not been successful, but he has the potential. But will you go, because they don't have such a big purse to really go flat out for Maxwell. So that is a one thing. Maxwell, one name which comes to my mind, and I somehow is a great fan of Mujibur Rahman. Any team, I would like him in the side, because for me, I think Mujibur Rahman might be a very good plus for RCB along with Yajuvendra Chahal. They bowl in tandem. But all in all, for me, Maxwell seems to be the only plus in this team. Rest, I'll leave it to Rishabh and Priyam who are more clued up. Yes, and now Rishabh, सीधा आप पे आता है. What do you think will be the goals of the management of Delhi Capitals for this auction? देखिए आदित्य, अगर हम दिल्ली की पूरी टीम को देखते हैं तो बेस्ट पार्ट इस पूरी टीम का जो दिखाई देता है वो है एक फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट. तो मैं काफी हद तक समझता हूं कि इस दिल्ली की टीम में अगर कोई एक वीक लिंक है तो वो है बैटिंग, और खासतौर से बैटिंग में भी या तो एक ओपनिंग स्लॉट जो इन्हें एलेक्स कैरी को रिलीज करने से उन्होंने बता दिया है कि दे विल बी लुकिंग फॉर, दे विल बी आइंग सम गुड फॉरेन प्लेयर जो कि टीम को ओपन कर सके, और साथ ही साथ कोई लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन. अगर ऑक्शन में उनके पास में पर्स अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर सम फॉरेन फास्ट बॉलर.
बट मुझे लगता है कि मोरलेस इन्होंने जो अपना पर्स बचा कर रखा है 12.8 12.9 सीआर, ये इनका जो इनका फोकस होगा वो उनका बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करने का होगा, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें, हमने सीजन 2020 में देखा कि पृथ्वी शॉ अगर सक्सेसफुल नहीं रहे तो टीम पर बहुत बुरा इम्पैक्ट आया उसका। उन्होंने जरूर ट्राई किया कि कभी शिखर धवन के साथ में ओपनिंग स्लॉट में उन्होंने दूसरे ऑप्शन जरूर लेकर आए। हमने देखा कि अजिंक्य रहाणे के साथ में भी एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्ट्राइकर की जरूरत थी, जैसा अशोक जी कहते हैं, लठैत की जरूरत थी। तो मुझे लगता है कि ऐसे किसी ना किसी एक्सपीरियंस T20 ओपनर की जरूर गुंजाइश यहाँ पर होगी। और चूंकि टीम मैनेजमेंट के अंदर जो कोच हैं वो है रिकी पॉन्टिंग, और रिकी पॉन्टिंग डोमिनेट करने वाले कोच हैं जो कि टीम की कहीं ना कहीं माइंड गेम को भी सेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पूल में कहीं ना कहीं जो बैट्समैन होंगे जिन पे वो उनकी नजर होगी, प्रॉबली मुझे लगता है एरन फिंच, बेशक उनका 2020 अच्छा नहीं गया, लेकिन एरन फिंच ऐसे ओपनर हो सकते हैं जो कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ में कैरी करते रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग, उन्होंने रिकी पॉन्टिंग के साथ में भी काफी हद तक क्रिकेट खेला है डोमेस्टिक क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए। हाल में बेशक उनका बिग बैश खराब रहा, लेकिन एरन फिंच एक बड़े खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ एलेक्स हेल्स कह सकते हैं। स्टीव स्मिथ के बारे में मैं समझता हूं कि चॉइस जरूर होगी। अगर कुछ और फॉरेन खिलाड़ियों की बात करें तो कोरे एंडरसन हो सकते हैं, जेम्स विंस की प्रियम बहुत तारीफ करते हैं। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनके लिए मुझे लगता है कि दिल्ली जरूर जाएगी। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर के लिए जो दिल्ली की सबसे ज्यादा जरूरत है वो इंडियन खिलाड़ियों के ऊपर होगी। उनका फोकस इंडियन प्लेयर्स के ऊपर होगा। तो इंडियन खिलाड़ियों में अगर मैं बड़े नामों की बात करूं जो कि जिनके ऊपर नजरें होंगी, अनकैप्ड प्लेयर्स या फिर डार्क हॉर्सेस, तो वो हो सकते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। इस टीम के पास में एक विकेट कीपर बैट्समैन की गुंजाइश है, ऋषभ पंत है, लेकिन इंजरी अगर हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसे में मोहम्मद अजहरुद्दीन एक बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। केदार देवधर अभी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो मुझे लगता है कि केदार देवधर जो है वो जरूर होंगे। शिवम दुबे को रिलीज किया गया है आरसीबी की तरफ से, तो यहाँ पर शिवम दुबे एक ऑप्शन हो सकते हैं, जलद सक्सेना हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये एक ऑप्शन है। स्पिनर में मुझे लगता है कि अगर टीम जाती है तो इस टीम के पास में एक राइट आर्म लेग स्पिनर का ऑप्शन हो सकता है। जरूर अक्षर पटेल इस टीम के पास में है, लेकिन अमित मिश्रा की इंजरी हुई तो टीम पर इम्पैक्ट आया था। तो ऐसे में पीयूष चावला एक और ऑप्शन हो सकते हैं। तो कुल मिला के बहुत वाइजली इन्हें ऑप्शन में परचेजिंग करनी होगी। 12.8 12.9 सीआर बहुत ऑप्शन नहीं है, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स का फोकस होगा बैट्समैन के लिए, और इंडियन प्लेयर्स का जो ऑप्शन होगा मुझे लगता है वो ऑलराउंडर्स या फिर स्पिनर्स के लिए होगा। Okay. And Priyam, just before I ask you the question, I just wanted to point something out. अशोक सर, आपने हर्षल पटेल की बात की थी दिल्ली कैपिटल से। मैंने अभी डबल चेक किया, हर्षल पटेल और डैनियल सैम्स हैव बीन ट्रेडेड टू आरसीबी फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स। तो वो आरसीबी की टीम में है अब। And so Priyam, I wanted to ask you that you know, with a purse such as 12.8 CR, Ashok sir mentioned that Delhi Capitals could go for some player like Glenn Maxwell. तो आपको क्या लगता है? Do you think they would sustainably use their purse, or would they splash out for a big player in the auction? What I personally believe is कि उन्हें definitely एलेक्स केरी को उन्होंने लेट गो किया है, तो डेफिनेटली दे लुक फॉर अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, और वो भी ओवरसीज टॉप ऑर्डर बैट्समैन, और ऐसे में दे स्प्लैश दैट कैश अराउंड दैट बैट्समैन, क्योंकि दिल्ली की ये रिक्वायरमेंट है। अगर शिखर धवन और पृथ्वी शॉ दोनों ही अच्छा नहीं करते हैं तो ऐसे में दिल्ली की बैटिंग लाइनअप कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाएगी, और इसीलिए उनको ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत पड़ेगी, ऐसे बल्लेबाजों की जरूरत पड़ेगी जो वो एक वॉइड जो क्रिएट होगा उसको फिल कर सकें। और अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स के करंट लाइनअप की, तो 3 प्लेयर जो ऑलमोस्ट हर मैच खेलते हुए, 3 ओवरसीज प्लेयर जो ऑलमोस्ट हर मैच खेलते हुए हमें नजर आएंगे, उसमें मार्कस टॉइनिस हैं, कगिसो रबाडा है और आंद्रे नोकिया है। ये 3 खिलाड़ी तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर मैच ऑलमोस्ट हमको दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स जरूर अपना एक फॉरेन ओवरसीज बैट्समैन लाना चाहेगी, और उसके पीछे वो काफी ज्यादा स्पेंडिंग कर सकते हैं, काफी वाइजली स्पेंड कर सकते हैं। देव गॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। हमने हाल ही में देखा बिग बैश लीग में एलेक्स हेल्स हैज बीन इन मैग्निफिसेंट फॉर्म, जेम्स विंस की ऋषभ ने बात की, साथ में ही कॉलिन मनरो और जेसन रॉय, ये कुछ ऐसे बल्लेबाज है जिनके पीछे दिल्ली कैपिटल्स डेफिनेटली दे कैन गो फॉर देम। और अगर बात करें उनके जो लोअर ऑर्डर कनेंड्रम की बात है, जैसा अशोक सर ने पहले कहा कि हमने कुछ मैचेस में देखा कि मार्कस टॉइनिस ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए ओपन किया इनिंग्स, तो अगर वैसा कुछ सिनेरियो आता है तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर सम जो
इनएक्सपीरियंस बैट्समैन है, बट जिन्होंने हाल फिलहाल में डोमेस्टिक क्रिकेट में इंडिया के लिए काफी अच्छा किया है। अगर हम बात करें पुनीत बिष्ट की, बहुत ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, 16 छक्के लगाए हैं उन्होंने अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, तो ऐसे में वो एक बहुत ही शानदार ऑप्शन हो सकते हैं। ऋषभ ने जैसा बताया, मोहम्मद अजहरुद्दीन पर भी काफी नजरें रहेंगी, क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन आपको चाहिए। डेफिनेटली आई वुड अग्री टू इट। अगर ऋषभ पंत को इंजरी होती है तो उनका बैकअप कौन रहेगा? हमने देखा था पिछले सीजन में ऋषभ पंत को 2-3 मैचेस में इंजरी हुई थी, और ऐसे में एलेक्स कैरी उनके बैकअप के तौर पर खेलते हुए नजर आए थे, बट क्योंकि इस साल टीम ने एलेक्स कैरी को रिलीज कर दिया, तो डेफिनेटली एक विकेट कीपर बैट्समैन के चॉइस के हिसाब से मोहम्मद अजहरुद्दीन कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। और साथ ही में विष्णु सोलंकी भी एक ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। हमने देखा है मैचेस फिनिश किए हैं विष्णु सोलंकी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हाल फिलहाल में। तो ये कुछ खिलाड़ी हो सकते हैं जिनके पीछे दिल्ली कैपिटल्स डेफिनेटली जाना चाहेगी। और मुझे लगता है कि एक फॉरेन ओवरसीज बैट्समैन के पीछे वे जरूर चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं वही एक वीक लिंक है। जैसा अशोक सर ने कहा, दे गॉट ऑल देयर बेसिस कवर्ड, और कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को कोई टीम कंपटीशन देते हुए नजर आती है तो इट्स नन अदर देन दिल्ली कैपिटल्स। तो एक जो वीक लिंक है उसको कवर करना जरूर चाहेंगे। Okay. So Ashok sir, if we talk about the players released from Delhi Capitals, personally sir मुझे लगता है 3-4 काफी बढ़िया players released हैं, जेसन रॉय, संदीप लामाचनी, एलेक्स कैरी। तो इनमें से sir, if you have to choose a few players who you think would go to other teams for a good amount of money, sir, who do you think those players would be? I think Alex Carey can be a top choice for a lot of teams, and Alex Carey can be a good choice even for RCB, because he's a good player, good batsman. Lamashan is another one who can be. Leggies are effective, but only problem is he's an overseas player. But they are a good leg spin, Indian leg spinners also. But he is another one who can be very useful. Others, I'm not too. Harshal Patel is already, and Sams. He's another very good prospect for. I would say these are good exchanges on the part of Royal Challengers Bangalore. And ऑल इन ऑल बाकी ज्यादा मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा, लेकिन if I have to speak about RCB, I think they have to strengthen their batting and bowling with Sams and Harshal Patel. Bowling is a little bit strengthened because Sams is a very good all-rounder. He has not fulfilled his potential so far. But another name which comes to my mind is David Malan. We have not spoken about him. He's a very good plus in 2020 cricket. His record has been awesome, to say the least. Alex Hales, yes, but Alex, I would, as a coach of RCB, I would prefer Virat to open the innings. Because then Virat can play 20 overs. Virat is a useful player when he plays 20 overs. He's not a useful player when he has to play 10 overs. So that is the problem. इसका जो डाउनफॉल विराट का अगर हुआ था, अगर आप देखें तो जब वो 10 ओवर दूसरी टीम के पाडिकल और फिंच खेल जाते थे, तब विराट का परफॉर्मेंस नहीं था। उसी मैचेस में रन हुए जहां उसने पहले 2-3 ओवर में अंदर आ गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इज प्रॉब्ली अ बेटर ऑप्शन एज एन ओपनर, एंड देन यू कैन हैव David Malan at 3, AB de Villiers at 4, and then you can go with other players. And David Malan, I'm a very big fan of him, because whatever I've seen, he starts from the word go. I know Alex Hales has done wonderfully well, but RCB will not need an opener. I still believe that Virat is probably the best opener as far as RCB is concerned, because आप दूसरों को देख के कि नहीं ये अच्छा है और आप अपने आप को पीछे कर लेते हो उससे, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो 1 और 11 AB डिविलियर्स और विराट ही होते हैं। जितने मर्जी परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर ले, एंड में वो दोनों पे डिपेंड होती है थी। और जहां तक बॉलिंग का सवाल है, Yajuvendra Chahal is there, but then like as I said before, I will go for and they have Zampa with them, but I will still go for Mujibur Rahman. Zampa and Chahal are more or less same kind of bowlers, but Mujibur Rahman is little more variation. You can use him in power play, you can use him in slog overs. He can be very effective. So RCB not only has to they have some good middle order batsmen after, because अगर विराट और AB out हो जाते तो
उनकी बैटिंग बिल्कुल बैठ जाती है। तो मिडिल ऑर्डर में you will have to look for somebody. You can even go for Rutherford, you can go for even Maxwell if possible. So to strengthen the middle order. But when it comes to the bowling, fast bowling, I know they have got Navdeep Saini, they've got Sairaj Bhavtule, but we know how badly they were treated in the last IPL. Because जब लाठी चलती है तब हमारे बॉलर बच नहीं पाते। तो आपको Sams is a good option, very good option. One, he's a left-hander, plus he bowls lot of slower deliveries. He might be useful, and if you don't go for Malan, then I think Alex Carey can be a very good plus for them. Because Alex Carey, not only for his wicket keeping, but for his batting also, he's very, very effective. Plus, he's a left-hander, so he can bat in the top order, he can bat in the middle order, and he can strengthen your middle order. For me, these are the changes, because although they have the big purse, and they can go for some Indian cricketers, somebody like I would say somebody like Vivek Singh, who plays for Bengal. I've seen him, and he's a very good striker of the ball. He might last for 6 overs, but he'll get 50 runs for you. That kind of a guy. So you can go for people like them. Ishan Porel is another good name which comes to my mind, who can be a very, very good plus as a medium pacer, who's been very effective in the Mushtaq Ali and other tournaments. So these are a few changes which I am looking at. And honestly, they should spend the purse little sensibly and make an all-round team, not a team which is depending only on AB and Virat. Because वो 200 पे बनाते हैं तो उनको यही डर लगता है दूसरी टीम तो 200 बना देगी, कि उनके पास बॉलिंग का हमेशा ही कमी रहती है। दाएं बाएं जैसे भी करते हैं, पर बॉलिंग उनकी हमेशा ही सस्पेक्ट रहती है। Batting, they are depending on them, so they need people around AB and like Devdutt Padikkal, if he's played, he should have a role. Okay, you have to go and score runs in probably 7-8 overs. You can't bat for 15 overs and because at the end of the day, main run AB ने बनाने। और फिर अगर डेविड मलान है जो आते ही बड़ी हिट लगा सकता है, एलेक्स कैरी है जो मिडिल ऑर्डर में ही कैन सॉलिडिफाई द मिडिल ऑर्डर, तो मेरे को ऐसा लगता है मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और जहां तक बॉलिंग का सवाल, मैंने पहले भी कहा कि इंडिया में जब गर्मी में बॉल होगा तो बॉल टर्न करेगा। मैं जानता हूं कि आरसीबी में बेंगलोर में ज्यादा मैच नहीं होने हैं, तो जहां होने वहां पे उस हिसाब से आपके पास मीडियम पेसर नवदीप सैनी है, मोहम्मद सिराज है, क्रिस मॉरिस you have released, but you can buy him back a little cheaper, because he can be a big plus for you. So Chris Morris is one more guy which you can Sam. That Chris Morris can be quite lethal, but the problem is they can only play 4. So though AB de Villiers is confirmed. If you have a David Malan, he should be there. Then maybe Zampa or Mujibur Rahman and Sam. These are the 4 overseas players they can play. Okay. So Rishabh, Ashok sir had mentioned that Alex Carey might be a big hit in the auction from the released players of Delhi Capitals. तो आपको क्या लगता है? Do you agree with Ashok sir? Do you think there's 1 or 2 other players who could also make noise in the auction? या आदित्य, मुझे लगता है पहले तो अशोक सर ने दिल्ली कैपिटल्स के शो में आरसीबी की टीम के लिए पूरी स्ट्रैटेजी डिस्क्लोज कर दी है। सो नेक्स्ट हमारा एपिसोड होगा आरसीबी का, तो उसमें मैं अशोक सर की इन टिप्स को जरूर यूज करूंगा। यस, ऑन द अदर नोट, एज यू सेड, एलेक्स कैरी, यस, मुझे लगता है कि ये एक बहुत वाइज मूव है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कि उन्होंने रिलीज किया। और लेकिन क्योंकि ज्यादातर टीम्स के लिए ओपनर की एक जो स्लॉट है वो बहुत ज्यादा इस वक्त क्रूशियल है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि एलेक्स कैरी और उनकी करंट फॉर्म कहीं ना कहीं इस टीम के लिए इस ऑक्शन के अंदर उन्हें बहुत अच्छी प्राइस देगी। और मुझे लगता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं मोहित शर्मा वो एक इंडियन फास्ट बॉलर हैं और थोड़े से एक्सपीरियंस भी रखते हैं T20 का, तो उन्हें अपनी ओल्ड एसोसिएशन से जरूर फायदा मिलने वाला है। बेशक बहुत हाई प्राइस पर ना सेल आउट हों, लेकिन आई एम होपिंग कि मोहित शर्मा को भी कोई ना कोई टीम जरूर इस बार एज ए इंडियन फास्ट बॉलर, क्योंकि मुकाबले इंडिया में होने आईपीएल इस सीजन इंडिया में खेला जाएगा, उन्हें जरूर कोई ना कोई बायर मिलेगा। अगर और कोई नहीं तो हो सकता है आप उन्हें किंग्स 11 पंजाब या फिर सीएसके के लिए खेलते हुए देखें। Okay, and Priyam, what do you think? Do you have anything to add to what Rishabh and Ashok sir have said?
आई बिलीव कि एलेक्स कैरी डेफिनेटली ही विल गो फॉर अ बिग बिड। साथ में जेसन रॉय का भी एक ऐसा नाम है कि वो अच्छे प्राइस में जा सकते हैं। डेफिनेटली ही कैन बैक दोज डील्स। जैसा अभी ऋषभ ने मेंशन किया कि ओपनर्स ढूंढ रही हैं बहुत सारी टीमें, और ऐसे में ओवरसीज ओपनर्स पर कैश स्प्लैश करने के लिए टीम्स कतराएंगी नहीं। तो ऐसे में जेसन रॉय एक बहुत अच्छा बाय हो सकते हैं किसी भी टीम के लिए। साथ में एक बहुत और इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है संदीप लम्बिछाने। इनकी काफी चर्चा रही है थ्रू आउट दी आईपीएल। नेपाल के स्पिनर हैं, काफी अच्छा इनका अब तक का करियर के स्टैट्स रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा रकम में तो नहीं जाएंगे, बट टीम्स हाँ इनके पीछे डेफिनेटली आईपीएल में बिडिंग कर सकती हैं, ऑल बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटी एंड हिज स्पिन कैपेबिलिटीज इन द इंडियन कंडीशंस। जस्ट Yes. जस्ट टू ऐड, मुझे ऐसा लगता है कि संदीप Got it. लेमिनेशन को शायद बायर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ओवरसीज प्लेयर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंसेस भी उन्होंने काफी अच्छी दी हैं, लेकिन क्योंकि एक ऐसी कंट्री से वो एसोसिएट नेशन से वो खेलते हैं, नेपाल से खेलते हैं, जहां पर उनको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने T20 जैसे अग्रेसिव फॉर्मेट में गेंदबाजी करने का, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक ड्रॉबैक होता है। और अगर टीम में लिमिटेड फॉरेन प्लेयर्स को ही आप खिला सकते हैं, और वहां पर भी एक ऐसा प्लेयर जिसको बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है, ही इज नॉट लाइक मोहम्मद नबी या फिर दूसरे गेंदबाजों की तरह जहां पे उनको एक ऑलराउंडर का रोल निभाएं। तो मुझे लगता है कि ये एक अनफॉर्चुनेट आयरनी होगी उनके साथ में कि शायद उन्हें इस बार बायर नहीं मिलेगा। दिस व्हाट आई थिंक सो। Okay. Thank you, Rishabh. And with that, guys, we will end our show about Delhi Capitals. I want to thank Ashok sir, Priyam, and Rishabh for joining us for this very interactive show. And we will see you guys for the RCB show. Thank you very much.